ایلون مسک کی اسپیس ایکس نے پاکستانی نوجوان کی قائم کردہ AI اسٹارٹ اپ کرسر خریدنے کی $60 ارب کی پیشکش کر دی ہے۔ اسپیس ایکس اور کرسر کے درمیان $60 ارب کے معاہدے کا امکان ہے۔ اسپیس ایکس نے کوڈ جنریشن اسٹارٹ اپ کرسر کو خریدنے کا آپشن حاصل کر لیا، جس کے شریک بانی پاکستانی نجات صالح آصف ہیں۔ اس سودے کے تحت اسپیس ایکس 9 سال کے آخر تک یا تو $60 ارب میں اس AI اسٹارٹ اپ کو مکمل طور پر خرید دے گا یا پھر نئی شراکت داری کے تحت $10 ارب ادا کرے گا۔ اس اقدام کا مقصد AI ڈیولپر ٹولز کی منافع بخش مارکیٹ میں اپنی گرفت مضبوط کرنا ہے۔ ایلون مسک کی جانب سے اسپیس ایکس نے پاکستانی نوجوان کی قائم کردہ AI اسٹارٹ اپ کرسر خریدنے کے لیے $60 ارب کی پیشکش کر دی ہے۔ اسپیس ایکس اور کرسر کے درمیان $60 ارب کے معاہدے کا امکان ہے۔ اسپیس ایکس نے کوڈ جنریشن اسٹارٹ اپ کرسر کو خریدنے کا آپشن حاصل کر لیا، جس کے شریک بانی پاکستانی نجات صالح آصف ہیں۔ ایران نے بدھ کو قبضے میں لیے 2 جہاز بندر عباس منتقل کر دیے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے آبناء ہرمز میں جہازوں کو تحویل میں لینے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ امریکہ جس ایرانی بحریہ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ آج بھی مضبوط اور طاقتور ہے۔ دشمن اس بحریہ سے 300 کلومیٹر دور رہنے پر مجبور ہے۔ ایرانی فورسز کسی بھی تحریک کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے بدھ کو قبضے میں لیے 2 جہاز بندر عباس منتقل کر دیے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے آبناء ہرمز میں جہازوں کو تحویل میں لینے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی کا کہنا ہے کہ امریکہ جس ایرانی بحریہ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ آج بھی مضبوط اور طاقتور ہے۔ دشمن اس بحریہ سے 300 کلومیٹر دور رہنے پر مجبور ہے۔ ایرانی فورسز کسی بھی تحریک کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لاہور سے افسوسناک خبر ہے، جہاں پر 3 بچوں کی قاتل ماں نکلی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گھریلو جھگڑے کے بعد خاتون نے بچوں کو قتل کیا۔ واردات کر کے خود کو بے قصور ظاہر کرنے کے لیے میڈیکل جانے کے بہانے گھر سے نکلی اور بعد میں شوہر کو فون کر کے بلایا۔ احمد کھوکر سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ احمد، کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس متعلق مزید؟ ہاں جی بالکل، یہ اشرا کے علاقے میں 3 بچوں کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ پولیس نے بڑی ذہانت کے ساتھ اور کافی کم وقت میں جو ہے وہ حل کر لی ہے، اور پولیس نے جو ہے وہ اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس میں DIG آپریشن فیصل کامران اور DIG انویسٹیگیشن جو ذیشان رضا ہیں، انہوں نے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو 3 بچوں کی لاشیں ملی ہیں، اس کے حوالے سے جو قتل ہے وہ ثابت ہو گیا ہے کہ بچوں کی جو ماں ہے وہی ان کی قاتل ہے، اور گھریلو ناچاکی کے اوپر جو ہے یہ بچوں کی جو ماں ہے انہوں نے قتل کیا ہے۔ ملزمہ نے جو ہے وہ ابتدائی تفتیش میں پولیس کو یہ بتایا کہ اس کے کردار پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر الزامات لگائے جاتے تھے اور وہ اس شادی سے جو ہے وہ نکلنا بھی چاہتی تھی، جبکہ خاتون نے پولیس کے مطابق باقاعدہ طور پر ایک پلان ترتیب دیا اس قتل کے حوالے سے، اور ابھی 1 سے 2 روز قبل جو ہے وہ چاقو بھی جو ہے اس نے خریدے۔ DIG جو ہیں آپریشن فیصل کامران، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب موقع پر پولیس وہاں پہنچی ہے تو جو موقع واردات کی جو چیزیں تھی موقع پر، وہ خود ہی بتا رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوا، اور دیگر اور جو کیمرہ ٹیم تھی اس نے باقاعدہ کیمروں کی مدد بھی لی، اور اسے دیکھا گیا کہ جو وہ گھر تھا اسے کون جو ہے وہ کس وقت سے باہر نکلا اور کتنے وقت میں جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس سے بھی جو ہے وہ پولیس کو بہت زیادہ مدد جو ہے وہ ملی ہے۔ تاہم انویسٹیگیشن جو ہے اس میں یہ واضح ہو گیا کہ جو بچوں کی قاتل ہے وہ ان کی سگی ماں ہی ہے، لیکن ابھی بھی اس کیس میں جو ہے وہ بہت سی اہم چیزیں باقی ہیں۔ بچوں کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ بھی آنا باقی ہے، اور ابھی تفتیش جو ہے وہ بھی ابھی مکمل احمد، خاتون نے اعتراف کر لیا ہے بچوں کے قتل کا؟ جی بالکل، اسی حوالے سے جو ہے وہ ابھی DIG آپریشن فیصل کامران اور DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے واضح ہے جو ہے وہ اس چیز کو بتایا ہے، میڈیا بریفنگ دی ہے کہ جو 3 بچوں کی قتل کی جو واردات ہے وہ ان کی سگی ماں نے کی ہے، تو بچوں کی جو قاتلہ ہے وہ ان کی سگی ماں ہے۔ یہ تو احمد پولیس بتا رہی ہے کہ ایسا کیا ہے، خاتون نے اعتراف کیا؟ جی بالکل، جب یہ معاملہ ہوا ہے قتل کی واردات کا، تو پھر پولیس نے بچوں کی جو والدہ ہے، والد ہیں، بچے کی جو دادی ہیں اور جو چچا ہیں، 4 افراد کو موقع سے جو ہے وہ تحویل میں لیا اور ان سے تفتیش کی۔ اس تفتیش کے دوران جو ہے بہت سے شک و شبہات جو ہے وہ بچوں کی والدہ کے اوپر گئے، پھر ان سے اور بچوں کے والد کا کیا موقف سامنے آیا اس پر احمد؟ ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ مزید تفتیش جاری ہے، اور بچوں کے والد کا جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ابھی نہیں آیا کوئی موقف کے مرڈر جو ہے وہ اس نے وہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ احمد تفصیلات کے لیے۔ اسلام آباد میں امریکی سفیر کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایران کی جانب سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع، کشیدگی میں کمی کی جانب
अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बैकर ने ख़ित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान का तामीरी किरदार सराहा। इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। सदर ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तोसी, कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बैकर ने ख़ित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान का तामीरी किरदार सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी खलाबाजों खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप दोनों से मिलकर दिली मुसरत हुई। आपका काबिल सताइश मिशन पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। खलाई तहकीक के लिए जाना पूरी कौम के लिए फ़ख्र की बात है। पुरएतमाद हूँ आप पाकिस्तान की तारीख़ में नया बाब लिखने जा रहे हैं। चीनी ताउन से ये सफ़र दोनों मुल्कों के बरादाना ताल्लुकात में नई जहतें पैदा करेगा। पाक चीन दोस्ती अब आसमान की बुलंदियां छूते हुए सितारों पर कमन डालने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी खलाबाजों खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप दोनों से मिलकर दिली मुसरत हुई। आपका काबिल सताइश मिशन पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। खलाई तहकीक के लिए जाना पूरी कौम के लिए फ़ख्र की बात है। पुरएतमाद हूँ आप पाकिस्तान की तारीख़ में नया बाब लिखने जा रहे हैं। चीनी ताउन से ये सफ़र दोनों मुल्कों के बरादाना ताल्लुकात में नई जहतें पैदा करेगा। पाक चीन दोस्ती अब आसमान की बुलंदियां छूते हुए सितारों पर कमन डालने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जहन्नुम जैसी जगह करार दे दिया है। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारतीय और चीनी शहरी अमेरिका में बच्चे पैदा करते हैं और फिर पूरे ख़ानदान यहाँ बुला लेते हैं। इंतज़ामिया अमेरिका में पैदा होने वालों को शहरियत देने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे। ट्रंप के बयान पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। एक्स पर लिखा, सदर ट्रंप ने भारत को जहन्नुम कहा। वो मुसलसल भारत की बेइज्जती कर रहे हैं और मोदी खामोशी से सुन रहे हैं। मोदी कमज़ोर वज़ीर आज़म है जिसका पूरा मुल्क खमियाजा भुगत रहा है। इंडियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल से जब ट्रंप के बयान से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्हें सांप सूंघ गया। कहा, हाँ हमने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं और मैं बस इतना ही कहूँगा। In some reports, that is where I leave it. We have seen some reports, that is where I leave it. We have seen some reports, that is where I leave it. We have seen some reports, that is where I leave it. अमरीकी बहरिया ने ईरान से मुंसलिक एक और जहाज़ पर कब्जा कर लिया है। अमरीकी वजारत जंग ने तस्दीक कर दी है। बयान में बताया है कि चीन जाने वाले जहाज़ मैजेस्टिक एक्स कुबैर हिंद से तहवील में लिया गया। अमरीका का दावा है कि ये जहाज़ ईरान से मुंसलिक था लेकिन इस पर किसी मुल्क का झंडा नहीं था। अमरीकी फ़ौज की जहाज़ पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में अमरीकी मैरीन्स को हेलीकॉप्टर से जहाज़ के अर्शे पर उतरते हुए देखा जा सकता है। Motor vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ईरान जंग बंद करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर केविन न्यूसम ने कहा, ईरान से जंग का कोई मकसद नहीं, सदर ट्रंप इसे खत्म करें। सेनेटर टेमी बेल्डोन ने कहा कि इस जंग से महंगाई और प्यारों की जुदाई के सिवा कुछ न मिला। The price spikes in this state are directly attributable to the actions of the President of the United States. The President of the United States needs to be held to account not only to those actions and the consequences of it, but he needs to end this war and he needs to address the growing crisis at the pump that he has exacerbated. अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने यह दावा किया है कि चीन ने ईरान को मुज़ाकरात में शामिल रहने का मशवरा दिया। चीन ने पाकिस्तान से मिलकर मुश्तरका सिफारती तजावीज़ भी पेश की। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के बायस असर रसूख रखता है। अमेरिका चीन के सालिसी किरदार में बज़ाहिर अदम दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। चीन की जानिब से इक्तिसादी ताउन को अमन अमल में अहम हथियार करार दिया जा रहा है। चीन ईरान जंग में आलमी ताकत के तौर पर अपना किरदार बढ़ा रहा है। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में चीन खामोश मगर मुअस्सर खिलाड़ी है। चीन ने सिफारती राब्तों के जरिए फ़रीक़ैन को जंगबंदी पर आमादा करने की कोशिश की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुतादिद रहनुमाओं को टेलीफोन करके कशीदगी कम करने पर जोर दिया।
अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है ईरान जंग से मुतासरा कई खलीजी इत्तेहादियों ने करेंसी स्वाइप की दरख्वास्त की है। सेनेट की समाअत में बयान देते हुए स्कॉट बेसेंट ने कहा करेंसी स्वैप की दरख्वास्त करने वालों में मुत्तहिदा अरब इमारात भी शामिल है। बेसेंट ने मजीद कहा कि करेंसी स्वैप का मकसद अमरीका में इत्तेहादी ममालिक के असासों की अचानक और बेहंगम फरोख को रोकना भी होता है। करेंसी स्वैप मुआहदे के तहत अमरीका किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फराहम करता है। डॉलर के बदले में अमरीका उस मुल्क की करेंसी लेता है ताकि मालियाती निज़ाम मुस्तहकम हो। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ टोल से पहली आमदनी मरकजी बैंक में जमा करवा दी। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा ने बताया आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से वसूल की गई फीस कौमी खजाने में मुंतकिल कर दी गई है। अल जज़ीरा टीवी चैनल का कहना है टोल सिस्टम ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंग के दौरान नाफिज किया गया था। ताहाल वसूली की मजमूई रकम की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी पर एक शख्स को फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया ने बताया सुल्तान अली शिराजी फ़ख्र को आज सुबह तख्तेदार पर लटका दिया गया। सुल्तान अली शिराजी को फ़ख्र जुर्म साबित होने पर ईरानी अदालत ने सज़ा सुनाई थी। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी पर एक शख्स को फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया ने बताया सुल्तान अली शिराजी फ़ख्र को आज सुबह तख्तेदार पर लटका दिया गया। सुल्तान अली शिराजी को फ़ख्र जुर्म साबित होने पर ईरानी अदालत ने सज़ा सुनाई थी। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है अमेरिका जिस ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा करता है वो आज भी मजबूत और ताकतवर है। दुश्मन इस बहरिया से 300 किलोमीटर दूर रहने पर मजबूर है। ईरानी फोर्सेस किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को तहवील में लेने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है अमेरिका जिस ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा करता है वो आज भी मजबूत और ताकतवर है। दुश्मन इस बहरिया से 300 किलोमीटर दूर रहने पर मजबूर है। ईरानी फोर्सेस किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को तहवील में लेने की वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और ज़ेरे आब जदीद ड्रोन अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए तैयार हैं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा समंदरी गारों में छुपा हमारा बेड़ा इंतज़ार में है कि कोई अमरीकी जहाज़ हद पार करे और उसे इबरत का निशान बनाए। अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने की हिम्मत नहीं, वो अपने बहरी जहाज़ों का अंजाम देख चुके हैं। कब्जे में लिए गए जहाज़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ईरान जंग के हामी रजा पहलवी पर हमला। बेल्जियम में कुछ अफराद ने रजा पहलवी पर केचप फेंककर नफरत का इजहार किया। सिक्योरिटी एहलकार घेरा डालकर रजा पहलवी को अपने साथ ले गए। रजा पहलवी ईरान पर अमेरिका इसराइल हमलों के हामी हैं। कहा जाता है अगर अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज कराने में कामयाब हो जाता तो ईरानी हुकूमत रजा पहलवी के सपोर्ट करने का मंसूबा बनाया गया था। जंगबंदी के दौरान जुनूबी कोरियाई वफ्द तेहरान पहुंच गया। तेहरान में जुनूबी कोरिया के खुसूसी वफ्द ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात की। जुनूबी कोरिया के नुमाइंदे खुसूसी ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुसूसी इजाज़त की बात की। अब्बास इराक़ची ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हुकूमतों के जराइम से आगाह किया। कहा ममालिक हमलों की मजम्मत में वाज़े और मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें। खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीकी और इसराइली जाहरियत है। ईरान ने अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। नताइज की जिम्मेदारी हमलावरों पर आयद होती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जहन्नुम के गढ़ों से तशबीह दे दी। ट्रुथ सोशल पर लिखा भारतीय और चीनी शहरी अमरीका में बच्चे पैदा करते हैं फिर पूरे ख़ानदान को यहाँ बुला लेते हैं। ट्रंप ने लिखा है तारकीन वतन अमरीका में फलाही और सेहत आमा की सहूलियात से फ़ायदा उठाते हैं। इंतज़ामिया अमरीका में पैदा होने वालों को शहरियत देने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे। ट्रंप के बयान पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। एक्स पर लिखा सदर ट्रंप ने भारत को जहन्नुम कहा। वो मुसलसल भारत की बेइज्जती कर रहे हैं और मोदी खामोशी से सुन रहे हैं।
मोदी कमजोर वजीर आजम हैं जिसका पूरा मुल्क खुमियाजा भुगत रहा है। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी अरकान को पेंटागन के ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग दी है। पेंटागन ने खुफिया ब्रीफिंग में बताया कि आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल सफाई में 6 माह लग सकते हैं। ईरान जंग के बाद बारूदी सुरंगें हटाने में तवील वक्त दरकार है। CNN के मुताबिक कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग में 6 माह का मुमकिना दौरानिया बताया गया। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को मंगल को अहम इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी गई। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ 1 से 6 माह बंद रह सकती है। ज़राए के मुताबिक ईरान हुर्मुज़ को तवील अरसे तक बंद रखने की सलाहियत रखता है। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने तवील बंदिश को बदतरीन मंजरनामा करार दिया है। तर्जुमान पेंटागन ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की 6 माह की बंदिश नाकाबिल कबूल होगी। जंग के माशी और सियासी असरात इंतहाई बड़े हो सकते हैं। कतर एयरवेज ने मुत्तहिदा अरब इमारात और शाम के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया। दमिश्क के लिए परवाजें 1 मई से शुरू होंगी। एयरलाइन के मुताबिक अहम रूट्स दोबारा फाल किए जा रहे हैं। परवाजों की बहाली से खित्ते में सफरी राब्ते मजीद बेहतर होंगे। और दूसरी तरफ सदर ट्रंप कहते हैं कि 36 से 72 घंटे में मुज़ाकरात हो सकते हैं। मजीद कहा, जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। लोग कहते हैं वस्त मुद्दती इंतखाबात की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सच नहीं। अमरीकी आवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहता हूँ। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी बहरिया को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म। ट्रूथ सोशल पर बयान में सदर ट्रंप ने लिखा है, अमरीकी बहरिया को तमाम ईरानी कश्तियों पर हमला करने का हुक्म दे दिया। ये ईरान की छोटी कश्तियां आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। हम ईरानी बहरिया के 159 जहाज पहले ही समंदर की तह में पहुंचा चुके हैं। अमरीकी बहरिया मेरे हुक्म पर अमल में किसी किस्म की हिचकिचाहट न दिखाए। हमारे जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर रहे हैं। अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ में कार्रवाइयों में 3 गुना तेजी लाए। तो कुछ ही देर पहले ये ट्रूथ सोशल पर बयान जारी किया गया था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और उन्होंने कहा कि ईरानी इंतहा पसंद आपस में झगड़ रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उन्हें मालूम ही नहीं कि उनका लीडर कौन है। ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। कुछ ही देर पहले उनकी जानिब से ये अहम बयान जारी किया गया है ट्रूथ सोशल पर। उन्होंने लिखा है कि सुरंगें बिछाने वाली तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म दे रहा हूं। उन्होंने अपने बयान में यह भी लिखा कि अमरीकी बहरिया को तमाम ईरानी कश्तियों पर हमला करने का हुक्म दे दिया। ये ईरान की छोटी कश्तियां आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। हम ईरानी बहरिया के 159 जहाज पहले ही समंदर की तह में पहुंचा चुके हैं। अमरीकी बहरिया मेरे हुक्म पर अमल में किसी किस्म की हिचकिचाहट ना दिखाए। हमारे जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर रहे हैं। अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ में कार्रवाइयों में 3 गुना तेजी लाए। सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म दे दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। ईरानी इंतहा पसंद आपस में झगड़ रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, ऐसा कहना है सदर ट्रंप का। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरानी इंतहा पसंद आपस में झगड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का भी हुक्म दिया है। सदर ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है और ईरानी इंतहा पसंद आपस में झगड़ रहे हैं। ईरान के साथ जारी जंग के दरमियान वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने अमरीकी बहरिया के वजीर जॉन सी फेलन को बरतरफ कर दिया। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन सी फेलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। ज़राए का दावा है जॉन फेलन को फौजी जहाज़ों के गोल्डन फ्लीट की तामीर के ट्रंप के मंसूबे पर इख्तिलाफ की वजह से हटाया गया। अंडर सेक्रेटरी हेंकाओ को बहरिया का कायम मकाम वजीर मुकर्रर कर दिया गया। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने अमरीका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज को फौरी तौर पर मुस्ताफी होने पर मजबूर किया। इसके अलावा जनरल डेविड और मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी ओहदों से हटाया जा चुका है। बीबीसी का कहना है अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर फौजी अफसरान को बरतरफ कर चुके हैं, जिनमें चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस और एयर फोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हैं।